सादिया कोई सुंबल नहीं है, वेटिंग रूम में आती है तो हम उनको एन कर देते हैं। रमजान वो सर को पानी दे दे और इधर आए मैडम को भी पानी दे दे, वो लैपटॉप दे दे। ठीक है, वो जवार को कहिएगा आ जाइए। नहीं सर, क्लास में ही है। बस अभी थोड़ी देर तक शुरू करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं स्क्रीनिंग कर लूँ। इधर ये कौन आए हैं, उजैर। बस थोड़ी देर तक शुरू कर रहे हैं। जिन्होंने मेरे ख्याल से नमाज पढ़नी है, जहाँ अजान हुई है, तो 1-2 मिनट में नमाज पढ़ के आ जाइएगा। जी कर लेते हैं, फिर मैं सर को भी मैं रब्ता करता हूँ। सर तो हमारे साथ ही हैं। It's not absent. She just said I will. Okay.
Thank you, beta. Economic conflict के major dimensions क्या है? The dimensions of the economic conflict. Number one, trade war. Trade war. दूसरा, currency war. Currency war. तीसरा, geo-economic conflict. Geo-economic conflict. ये तीन बड़े economic conflicts. Now, US products are unable to compete with the Chinese products in the international market. US products Chinese products के साथ international market में compete नहीं कर पा रहे हैं. पहली बात, कैसे नहीं कर पा रहे हैं? Elaborate करता हूं. China has replaced US as a leading trade partner in a number of world markets. China ने US को replace कर दिया है as a leading trade partner in a number of world markets. For example, one कहाँ पे replace किया है? That is African region में. African region में. दूसरा, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में. साउथ अमेरिकन कंट्रीज में. तीसरा, मिडल ईस्ट में. मिडल ईस्ट में. फोर्थ, आसियान कंट्रीज में. आसियान कंट्रीज में. और फिर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ यूरोप है, इंडिया है. Second largest trade partner of Europe, India, Japan, etc. And in the near future, Europe का सबसे बड़ा trade partner बन जाएगा China. In the near future, China would become the largest trade partner of Europe. इसी बात को मजीद आगे लेके चल रहा हूं. US products are not only unable to compete with the Chinese products in the international market, सिर्फ international market में वो compete करने में नाकाम हुआ है US with Chinese products, but also in the local market of America, the national market of America. US products in the local market of US are unable to compete with the Chinese products. सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, यूएस के अपने मार्केट में भी चाइनीज प्रोडक्ट्स के साथ यूएस प्रोडक्ट्स compete नहीं कर पा रहा. और ये सारी वजह क्या है? Cheaper production cost of Chinese products. Chinese products are far cheaper than that of the United States of America. Chinese products cheaper हैं price में as compared to the products of US.
क्यों? The production cost of Chinese products is low. The production cost of Chinese products is low. While that of US is high, Chinese production cost कम है, American production cost ज़्यादा है. और फिर factors that contribute to the production cost, cheaper और expensive production cost को contribute करने वाले factors क्या क्या हैं? Number 1, सबसे बड़ा, labor. Chinese labor is far cheaper than that of USA. Dusra, the ratio of taxes in China is low as compared to US. Tisra, the price of yuan, Chinese currency yuan, उसका नाम क्या है? युआन है. जो चाइनीज करेंसी युआन है उसकी प्राइस कम है. मतलब क्या? China produces its products in yuan. China produces its products in yuan, but sell them in the international market in dollars. China अपने products yuan में तैयार करता है, जो कि प्राइस में cheaper है as compared to dollar, while it sells its products in the international market in dollars. तो ऑटोमेटिकली चाइना को एज मिल जाता है युआन के कम प्राइस होने की वजह से. उसके प्रोडक्ट्स चीपर रहते हैं. So Chinese products are cheaper as compared to that of United States of America. Resultantly, American products are unable to compete with the Chinese products, not only in the international market, but even local market of United States of America. इससे क्या हुआ है? China has become the world's largest producer and exporter. China दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन गया है. The country with the highest trade surplus, largest producer and exporter बना हुआ है. और फिर the country with the highest trade surplus in the world, उसका ट्रेड सरप्लस में है. और चाइना का, यूएस का ट्रेड क्या है? डेफिसिट में है. मजीद चाइना विद हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व्स, चाइना के फॉरेन रिजर्व्स दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, मोर देन $3 ट्रिलियन. $3 ट्रिलियन के प्लस फॉरेन रिजर्व्स. मजीद China has surpassed US in purchasing power parity. Purchasing power parity में PPP में चाइना ने यूएस को 2016 में रिप्लेस कर दिया है. मजीद $1.5 ट्रिलियन प्लस लोन दे चुका है चाइना टू यूएस. चाइना ने $1500 अरब प्लस लोन दिया हुआ है टू यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, वगैरह वगैरह. तो मैंने आपको थोड़ा सा एक इकोनॉमिक कंपैरिजन करवाया जिसमें यूएस की डिक्लाइन है और चाइना की राइज है.
दैट इज द रीजन कि इन दोनों के दरमियान में इकोनॉमिक राइवलरी है, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द टू कंट्रीज. इसके बाद फिर अब इन दोनों के दरमियान में ट्रेड वॉर कैसे चल रही है. ट्रेड वॉर को समझने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव लिस्ट और दूसरा नेगेटिव लिस्ट. ये दो चीजें पहले समझना जरूरी है. Every country, while trading with the foreign world, every country, while trading with the foreign world, maintains two lists. दो लिस्ट मेंटेन करता है. Positive list. Positive list is the one which contains those products the import of which is allowed. पॉजिटिव लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें वो प्रोडक्ट मेंशन होते हैं जिसकी इंपोर्ट अलाउ. बट द प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ टैक्स वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंट्री टू कंट्री. उस पर टैक्स कितना है? 4% है, 10% है, 12% है, 20% है, 50% है, 100% है, 200% है. कितना है? वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कंट्री टू कंट्री. सो एक तो पॉजिटिव लिस्ट. दूसरा नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट क्या है? इट इज अ लिस्ट दैट कंटेन्स दोज प्रोडक्ट्स द इंपोर्ट ऑफ व्हिच इज नॉट अलाउड. It contains those products the import of which is not allowed, जिसके import पे पाबंदी हो. ठीक. Now अब फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म समझो. फ्री ट्रेड क्या है? फ्री ट्रेड. फ्री ट्रेड क्या है? फ्री ट्रेड, the removal of the tariff and non-tariff barriers. Removal of the tariff. Tariff का मतलब क्या? Taxes of the tariff, जो taxes लागू हैं. And non-tariff barriers. Non-tariff barrier क्या है? सबसे बड़ा tax. Negative list. The removal of the tariff and non-tariff barriers. जो टैरिफ है और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं
उनकी रिमूवल इज फ्री ट्रेड. और प्रोटेक्शनिज्म क्या है? बिल्कुल अपोजिट है. Imposing higher tariff and non-tariff barriers. Imposing higher tariff and non-tariff barriers is protectionism. Imposing higher tariff and non-tariff barriers is protectionism. फ्री ट्रेड में टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स की रिमूवल है और प्रोटेक्शनिज्म में इम्पोजिशन है. So both the ideas are opponent to each other. दोनों ideas एक दूसरे के opponent है. कैसे? एक सेकंड बचो. Okay. All right. So free trade and protectionism मैंने आपको समझाने की कोशिश की, right? Now, US-China have entered into the biggest, largest trade war of the century. US और चाइना ने इनिशिएट कर दिया the largest trade war of the century. कैसे? (2017) onward, Trump started imposing higher taxes on Chinese products. 2017 onward, US imposed higher taxes on Chinese products. In the first phase, पहले phase में $100 billion
goods were heavily taxed. पहले फेज में क्या हुआ, कोई $100 बिलियन के गुड्स पे हायर टैक्सेस लागू किए गए। 100 बिलियन के टैक्सेस लागू नहीं किए गए, $100 बिलियन के गुड्स पे हैवी टैक्सेस लागू किए गए। फेज सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड फेज में क्या हुआ, $130 बिलियन ईच, $130 बिलियन each goods were heavily taxed. $130 billion each of goods heavily taxed, उस पे ज्यादा टैक्सेस लागू किए गए। और फिर फोर्थ फेज में around $60 billion of goods were heavily taxed. तो अमेरिका ने 4 फेजेस में चाइनीज प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लागू किए। ओवरऑल मोर देन $400 बिलियन of Chinese goods heavily taxed, उस पे हायर टैक्स लगाए गए। किसने? बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे पहला किसको टारगेट किया? हवावे, हवावे के प्रोडक्ट्स को। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलुलर कंपनी हवावे पे टैक्सेस लागू किए। दूसरा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स electrical equipments like solar panels, washing machines, refrigerators, etc. heavily taxed किए गए। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को heavily tax किया गया, वो मोबाइल मैंने बता दिया। उसके बाद third, that is steel and aluminum goods were heavily taxed. स्टील एंड एल्यूमिनियम गुड्स को heavily tax किया गया, etc. ये कर दिया यूएस ने अगेंस्ट चाइना। फिर चाइना रिटेलिएटेड, चाइना ने रिटेलिएट किया, चाइना ने रिटेलिएट किया। पहले फेज में $60 बिलियन, दूसरे सेकंड एंड थर्ड फेज में $30 बिलियन ईच, $30 बिलियन ईच के गुड्स heavily taxed by China. इतने टैक्सेस नहीं लगाए, इतने प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाए गए by China. तो यूएस ने above 400 of Chinese goods को heavily tax किया और चाइना ने above $100 बिलियन के गुड्स को heavily tax किया। चाइना ने सबसे पहले किसको टारगेट किया? एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्री गुड्स को टारगेट किया।
दूसरा, लग्जरी गुड्स को टारगेट किया, लग्जरी गुड्स को टारगेट किया। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, प्राइवेट शिप्स वगैरह। और सबसे बड़ा टारगेट किसको किया? एप्पल को किया, एप्पल फोन को, लैपटॉप्स को किया। दुनिया में सबसे बड़े यूजर्स ऑफ एप्पल कहां पे है? चाइना में, तो उनको टारगेट किया। ठीक, रीजंस, इन दोनों ममालिक ने ऐसा क्यों किया? फर्स्ट, व्हाई यूएस डिड इट, यूएस ने ऐसा क्यों किया? नंबर वन, to reduce its trade deficit, to reduce its trade deficit, अपने तिजारती खसारे को कम करने के लिए किया। 2017-18 में $635 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था ऑफ यूएस विद द वर्ल्ड, जिसमें अलोन विद चाइना अबव $300 बिलियन था। इसलिए सबसे पहले चाइना को टारगेट किया। तो अपना ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करना था, और यूएस ने ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस कर दिया बाय मोर देन $200 बिलियन, रिड्यूस कर दिया बाय इम्पोजिंग प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। ठीक, दूसरा, टू रिवाइव द लोकल इंडस्ट्री, to revive the local industry, local industry को revive करना था। मतलब क्या? American products were unable to compete with the Chinese products in the local market. Products were unable to compete with the Chinese products in the local market of USA. Why? Because Chinese products are cheaper in prices, far cheaper in prices as compared to American products. Resultantly, US had to impose higher taxes on Chinese products. इसलिए US ने चाइना के प्रोडक्ट्स पे हायर टैक्सेस लागू कर दिए। उससे क्या हुआ? Chinese products would reach into the American markets with higher prices.
इससे क्या हुआ? Chinese products got expensive in the American markets क्योंकि higher taxes लागू कर दिए, and their imports were discouraged. The imports of the Chinese products were discouraged. क्यों? क्योंकि उस पे higher taxes लागू किए गए. So दो बड़ी वजूहात why US imposed higher taxes on Chinese products. Third, Trump blamed China to be involved in intellectual theft. चाइना पे यूएस ने क्या इल्जाम लगाया कि वो इंटेलेक्चुअल थेफ्ट में इन्वॉल्व है. कैसे? इट कॉपीज अमेरिकन प्रोडक्ट्स, ये कॉपी कर लेता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स को and produces them at cheaper prices. China copies American technologies and produces those products at cheaper prices and sell them out to the world, especially US. So until and unless US does not stop, until and unless US does not stop intellectual theft, जब तक US intellectual चोरी नहीं रोकता, तब तक यूएस पे टैक्सेस लागू रहेंगे, तब तक हम चाइना पे टैक्सेस अप्लाई करते रहेंगे. हायर टैक्सेस वुड रिमेन टू बी इम्पोज्ड ऑन चाइना until and unless it does not stop intellectual theft. मजीद, why China did it? China ने ऐसा क्यों किया? China imposed higher taxes on American products in retaliation. Simple retaliation में किया. उसने सिर्फ retaliation में किया. मतलब क्या? Free trade suits China more and more. Free trade China को ज्यादा से ज्यादा suit करता है. Free trade suits China more and more. China को free trade ज्यादा suit करता है. But क्यों suit करता है? Because it is the cheaper producer in the world. In fact, it has become the leader of the free trade world. जो फ्री ट्रेड वर्ल्ड आजकल उभर रही है, या उसको कौन लीड कर रहा है? चाइना. चाइना को फ्री ट्रेड सूट करता है. Yet again, it imposed higher taxes on American products. That was all in retaliation. क्यों? Because US imposed higher taxes on Chinese products that resulted in the decline of exports of China towards United States of America. US ने impose किए higher taxes on Chinese products. उसकी वजह से China के exports towards US कम हुए, decline कर गए. China was left
with no option but to strike back, but to counter back. उसने क्या कर दिया? सबसे पहले टारगेट कर दिया the agricultural goods of America. एग्रीकल्चरल गुड्स ऑफ अमेरिका को टारगेट किया. दूसरा, लग्जरी गुड्स को टारगेट किया. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, द कंस्टिट्यूएंट्स ज्यादा टैक्सेस लागू किया, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में. ठीक. नाउ इम्प्लीकेशंस, इम्पैक्ट्स क्या पड़े? इम्प्लीकेशंस, इम्पैक्ट्स क्या पड़े? मुझे सिर्फ ओके. ऑल राइट. सो चाइना ने रिटेलिएट किया. दो फ्री ट्रेड suits China more and more. If free trade suits any country, in the world, the most, that's the of China reduced towards US. The foreign reserves of China could set back होना. And
इंडस्ट्री की रिवाइवल शुरू हुई। क्यों? लोकल प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ गई, बाहर के प्रोडक्ट महंगे हो गए, तो ऑटोमेटिकली लोकल इंडस्ट्री ने रिवाइव होना था। टू थर्ड, setback to यूएस एग्रीकल्चर सेक्टर। यूएस के एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, और वो किसकी वजह से हुआ? चाइना की वजह से हुआ। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑफ यूएस एग्रीकल्चर गुड्स, उसने वो बंद कर दिए। मजीद नुकसान किसको पहुंचा यूएस में? दैट इज द यूएस में इंपोर्टर्स इंपोर्टर्स heavily affected। इंपोर्टर्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया गया। एक देखें, जो यूएस चाइना ट्रेड था, आप लोग अगर थोड़ा सा मुझे मौका दें, मैं टॉपिक खत्म कर दूं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। दैट इज यूएस चाइना ट्रेड 2017-18 कितना था? 532 बिलियन डॉलर्स, जिसमें चाइना के, यार आप लोग प्राइवेट मैसेज करना बंद कर दें प्लीज। नवीद इनके चैट बंद कर दो, ये लोग प्राइवेट मैसेजेस जो कर रहे हैं वो भी किसी तरीके से बंद करो। यूएस चाइना ट्रेड 2017-18 में कितना था? दैट वाज
में कमी नहीं आई बल्कि इंपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। कैसे? फॉर एग्जांपल, हमने चाइना को यूएस को मोबाइल एक्सपोर्ट करने हैं। उस मोबाइल को हमने पाकिस्तानी रुपये में तैयार किया है, लेट्स से 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए लेट्स से उसकी प्राइस है, कितनी हो गई? 10,000 इंटू डॉलर में, या डिवाइड बाय डॉलर, जो जो भी है रेशो। अब मिसाल के तौर पे उसकी कीमत है $100। अब डॉलर महंगा हो गया, हम तो वही 10,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं, रुपी तो महंगी नहीं हुई है, वो तो सस्ती रही है। तो क्या होगा? 10,000 रुपए के बदले में अब हमें कितने देने पड़ेंगे? डॉलर तो महंगा हुआ है, रुपी तो सस्ती हुई है, तो ऑटोमेटिकली यूएस के इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी। चाइना के साथ जो हुआ बिल्कुल अपोजिट यूएस के साथ हुआ। चाइना के इंपोर्ट्स में कमी आई, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, वाइस वर्सा हुआ विद यूएसए। अब मैं आप लोगों को अच्छा, आप लोग ये बताएं कि मैंने क्या आप लोगों को BRI पढ़ाया है? दोनों बैचेस से बेटा पूछ रहा हूं, बिल्कुल प्राइवेट मैसेजेस आप कर रहे हैं। 17B और 27 दोनों बताएं, मैंने BRI पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? बसला सुल्तान, आप उनसे पूछ लीजिएगा क्या मैंने सबको नहीं पढ़ाया BRI, ताकि मैं थोड़ा सा फिर एलाबोरेट कर दूं। ओके, BI कंप्राइज अपॉन 6 कॉरिडोर्स। BRI में 6 कॉरिडोर्स हैं, 6 कॉरिडोर्स हैं। 1, चाइना, सेंट्रल एशिया, इसको हम कार्स कहेंगे, सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप। दूसरा, चाइना, अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, यूरोप। तीसरा, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान कॉरिडोर। फोर्थ, CPEC। फिफ्थ, चाइना, आसियान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आसियान में 10 ममालिक हैं। आसियान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, लाओस, वियतनाम वगैरह। सिक्स्थ, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार कॉरिडोर। ये 6 बड़े कॉरिडोर्स हैं। इनमें क्या क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कहां कहां पे,
investment is in सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, लाइक 26 सी पोर्ट्स हैं, 26 सी पोर्ट्स हैं। हर वो में क्या कहते हैं कॉरिडोर पे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, मोटरवेज हैं एंड हाईवेज। एक तो हुआ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, दूसरा इन्वेस्टमेंट है इन द एनर्जी सेक्टर। बच्चे हाथ उठा रहे हैं जी। मारूख या जो भी आपका बेटा नाम है, मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलो। जी सर, मुझे ये बताना था कि हमारे बैच रावलपिंडी 17 ने ये टॉपिक कवर कर लिया था। अच्छा, ये कवर तो मैं तो पूछ के तुम लोगों से तक गया, तुम लोगों ने बताया कुछ नहीं। ठीक है, बस मैं इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूं। उसके बाद इसको शॉर्ट कर रहा हूं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कहां पे है? एनर्जी सेक्टर में है। एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, खास तौर पे कहां पे है? कैस्पियन रीजन में। कैस्पियन रीजन, जो कैस्पियन सी के इर्द गिर्द ममालिक हैं वहां पे, दैट इज रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एक्सेट्रा। उसके बाद मिडिल ईस्ट में है एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट। तीसरा इन्वेस्टमेंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। ईजी पाकिस्तान में इन्वेस्ट। अब चाइना के इससे बड़े ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि आधा पढ़ा लिया था, इसलिए आधे में छोड़ नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइना, चाइना के इससे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? शॉर्टर एक्सेस टू द मार्केट, शॉर्टर एक्सेस करना। कैसे? शंघाई टू यूरोप कितना रास्ता है? 49 days द मिनिमम। चाइना यूरोप कॉरिडोर, चाइना ईयू कॉरिडोर पे कितना रास्ता होगा? 11 days मैक्सिमम। और 22,000 किलोमीटर डिस्टेंस शॉर्ट होगा, 22,000 किलोमीटर डिस्टेंस शॉर्टेंड होगा। चाइना सऊदी अरेबिया, चाइना सऊदी अरेबिया KSA कितने दिन लगते हैं? 36 days। सी पैक के थ्रू 11 days लगेंगे और 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस शॉर्ट होगा, 12,000 किलोमीटर डिस्टेंस शॉर्ट होगा। एक बड़ा फायदा। दूसरा, अल्टरनेटिव ट्रेड राउट सिस्टम चाइना के लिए। अच्छा, अल्टरनेटिव ट्रेड राउट सिस्टम के दो हिस्से हैं। एक चाइना के लिए, चाइना के पास एक रास्ता है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी,
Bay of Bengal, Arabian Sea, and beyond. एक ही रास्ता है. 84% प्लस ट्रेड ऑफ चाइना यहां से गुजर रहा है. अब चाइना डेवलप कर रहा है 6 कॉरिडोर्स, तो उसके पास 6 और रास्ते होंगे जो कि शॉर्टर होंगे, फास्टर होंगे. उसके बाद पार्ट बी इसका क्या है? अल्टरनेटिव राउट्स फॉर द वर्ल्ड. दुनिया के लिए रास्ते, अल्टरनेटिव राउट्स आएंगे. किसके लिए? यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए, एशिया के लिए. ये 6 कॉरिडोर जो कि शॉर्टर होंगे, जो कि फास्टर होंगे, ये आपस में ट्रेड करेंगे थ्रू BRI कॉरिडोर्स. मतलब क्या? डिपेंडेंसी ऑन सी वुड रिड्यूस. सी पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी. मजीद चाइना क्या कर रहा है? चाइना penetrates into the world markets more and more. वर्ल्ड मार्केट्स में ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है. स्पेशली यूएस एलाइज, जो यूएस एलाइज रही हैं, ईजी फॉर एग्जांपल फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, एक्सेट्रा. और फिर यूरोप पेनिट्रेट कर रहा है. मजीद चाइना would influence करेगा the decision making process of BRI countries in its own favor. China influence करेगा the decision making process of the governments of BRI countries in its own favor. कैसे? Through investment diplomacy. चाइना इन्वेस्टमेंट करता है ममालिक में, तो वो ममालिक उनके खिलाफ कैसे पॉलिसीज बनाएंगे, राइट? सो दीज एंड मोर आर द फैक्टर्स जिससे क्या हो रहा है, BRI चाइना को एक सीधा जो मैंने आपको एक बड़ा पॉइंट बताया, दैट इज कि यूएस के एलाइज को छीन रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में पेनिट्रेट कर रहा है, अल्टरनेटिव ट्रेड राउट्स दे रहा है, और मौका दे रहा है चाइना को टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. और इसका सेटबैक सीधा किसको होना है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को होना है. हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक के बाद पढ़ेंगे दैट इज जियो स्ट्रेटेजिक conflict between the two countries. ब्रेक कीजिएगा,
It's 7:52-53. हम वापस आएंगे around 8:10. So 18 to 20 minutes break कीजिएगा प्लीज, हम लोग वापस आएंगे.